अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है, वैसे ये रेकमेंड किया मुझे शाहिद खान, कमेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि बिस्किट के हलवा उस पर। हमारे लिए तो एक नई चीज़ है बिस्किट का हलवा। बिस्किट का हलवा, डिलीशियस बिस्किट रेसिपी कुकिंग इन विलेज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स प्ले। बिस्किट का हलवा कैसे बनता है वैसे? अच्छा, बिस्किट को चूरा करेंगे। बिस्किट किसी के प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। காத்து வேற அடிக்குது தாத்தா. காத்துதான் தாத்தா இங்க கோளாறு பண்ணும். வாயுவானே இங்க பாரு கிடக்கட்டும். அப்பதான் பால் ஊற்றுவோம்ல, எடுத்துக்குவோம். இன்னும் இருக்கட்டும். பால் காயட்டும். அடுப்பை பற்ற வச்சு பால் காய வச்சு ஒரு பெரிய தட்டுத்தலை கொண்டாந்து, பெரிய தலை கொண்டாந்து கொட்டுவோம் பாரு. எல்லாம் விசையா குத்துனேன். எனக்கு கல் இல்லாம கிடக்குற மிளாறுகளை கொண்டாந்து குறைக்கி வச்சா நல்லா எரியும். பசுவாம் பாலே இதுக்குள்ள வந்து முடியாடுற இந்த விஷயத்துல நம்பலாண்டா. நல்லா எரியுதா விறகுலாம். ஆட்டு ஆட்டுனே போயிரு போலவே. கூழ் ஊறிடுச்சு, நல்லா ஊறிடுச்சு. மேல சேர்த்துக்க, சைட்ல உள்ள சேர்த்துக்க. இந்த ஓரத்துல எண்ணெய் கிண்டி விட்டு கரண்டியை மட்டும் கொடுத்துரு. தண்ணியில் நினைச்சிட்டு கடைசியில் கிடக்குறேன். சூப்பர் சூப்பர். நமக்கு ஊத்து. நல்லாதான் இருக்கு. கடைசியில் பாலில் ரொட்டி நினைச்சிட்டு கடைசியில் கிடக்கும் பாரு, அந்த கூழா அந்த டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கு. அது வரைக்கும் இல்லை பார்த்து மாப்பிள்ள வேறு கொண்ட குழுலாம் தேடும்.
அலப்பறைய பண்ணி எவன்டா எடுத்தோன்னு அலப்ப இவருக்கு ராசா ரொம்ப என்ன சொல்லலாம் நம்புவோம். நான் காசு கட்டிங்க எனக்கு ஏன் நடந்து எடுத்துக்கிறியா பிடிச்சிக்கிறது அப்படியே சுத்தமான நாட்டு பசு நெய், பால்ல ஊற வச்ச ரொட்டி கூழு. கொஞ்சம் லேசானே கொஞ்சம் தூக்கிங்க மேல. நான் இப்படி வலிச்சு விடுறேன். லேசா சாப்பிடுங்க. நல்லா இழுத்துக்க, எல்லாத்தையும் இழுத்துக்க. களி எடுத்துக்கங்க. பெரிய கட்டை விறகு வேணா சொல்லுவீங்க. சுத்தமான பணம் கருப்பட்டி, அம்மா முள்ளு போட்டுச்சு, காராமுள்ளு. நெய்யில வறுத்து எடுத்த பாதாம் பருப்பு, நெய்யில வறுத்த முந்திரி பருப்பு, நெய்யில வறுத்த பிஸ்தா பருப்பு, நெய்யில வறுத்த உலர் திராட்சை, நெய்யில வறுத்த தர்பூசணி விதை, மழை வருது நல்லா இல்லைங்க. அல்வா வந்துருச்சு. ஆஹா ஆஹா, அது என்னமோ அப்படியே எடுத்து வைங்க. அப்படியே விட, அப்படியே விட. வைங்க. முந்திரி வந்துருச்சு எனக்கு. கலர்ல எனக்கு தெரியுது. தர்பூசணி விதையாம். தர்பூசணி விதை இங்க இரு. இந்த விதை எதுக்கு போகுது? எனக்கு நெய் அடியில் நிறையா இருக்குயா. தர்பூசணி வேணாமாப்ல, அதை கண்டுபிடிச்சேன். கண்டுபிடிச்சி அவனுக்கு இருக்கா? நெய் நம்மளை கூல் பண்ணுது மச்சான். என்ஜாய் பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம் தானே. நான் நல்லா சாப்பிடுறேன். நாங்க சாப்பிடுவோம்ல. ஒரே ஒரு கப்பை கொடுத்துட்டு தின்னு பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கப்பை கொடுங்க. இன்னைக்கு ரொட்டியில அல்வா, ரொட்டியில பால் ஊத்தி நல்லா ஊற வச்சுட்டு கமகமன்னு நாட்டு பசு நெய்யை ஊத்தி செஞ்ச அல்வா. அது அந்த நெய்யிலே வறுத்த முந்திரி, பாதாம் பிஸ்தா, இந்த பூசணி விதை எல்லாம் போட்டது உண்மையிலே வேற லெவல் இருந்துச்சு. அது அடமலையில சுட சுட கமகமன்னு ரொட்டி அல்வா. ஒரு கப்பு தான் சாப்பிடலாம். அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. கப்பு தான் காலி. तो ये था बिस्किट का हलवा। अपने आप में ये यूनिक डिश थी, तो मैंने पहली बार देखा है। हलवा मतलब जाहिर सी बात है वो आटे का या मैदे चीज़ों का बनता होगा, हाँ, लेकिन सूजी उन्होंने का बिस्किट का बना दिया। हाँ। तो मतलब आप किसी भी चीज़ का कुछ भी बना सकते हो अगर आप में टैलेंट। महंगा नहीं पड़ा होगा? क्या महंगा पड़ा होगा? ड्राई फ्रूट्स तो ये हर चीज़ में यूज़ करते हो। नहीं, बिस्किट तो इतने ज़्यादा लेने पड़ गए ना। बिस्किट देखें, एक प्रोसेस से गुजर के बिस्किट खुद महंगे हो जाते हैं। पूरी एक फैक्ट्री होती है, पूरा उसको तला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है टेस्ट में फ़र्क हो या कोई और बेहतरीन चीज़ हो।
और सुनने में बड़ा अजीब सा है ना, बिस्किट का हलवा, यानी कि वरना नॉर्मल तो हलवा बनाना है, हलवा तो बना रहे हैं, लेकिन बिस्किट का हलवा तो ये अपने आप में लेकिन बना दिया और नॉर्मल लग रहा है जैसे हलवा होता है वैसे बिल्कुल ये गुड़ मिलाते ही कलर चेंज हुआ यार। ये तो मतलब ऐसा कलर हो गया था, सुनहरा सुनहरा सा, प्यारा प्यारा सा, और बारिश ऊपर से और ड्राई फ्रूट से ग्रीनरी। तो उन्होंने भर दिया, मुंह में पानी लाया। हमारे यहाँ भी हलवा बनता है, तो ड्राई फ्रूट बिस्किट तो का खाया है? नहीं नॉर्मल हलवा बनता है। आज ही इत्तेफाक से नाश्ते में हलवा खा लिया था, कौन सा? यही इसी तरह का ही हलवा था, लेकिन उसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं होते। मुश्किलों से कभी ढूंढना पड़ते हैं। नहीं, मुश्किलों से कभी कभार खोपरे की पतली पतली सी कटिंग डलियाँ आ मिल जाती है, हाँ। तो ये है कि इन्होंने तो फुल मतलब पिस्ते भी, बादाम भी, किशमिश भी, और काजू। हमारे यहाँ इलायची ज़रूर होती है ताकि आप ड्राई फ्रूट की खुशबू ले सकें। ऐसा ही है, उस इलायची पे छील के उसके दाने डाल देते, पीस के, या कुछ लोग साबुत डाल देते हैं खुशबू आ हलवे जाती है में, बस। लेकिन खुशबू आती है। ड्राई फ्रूट्स ढूंढने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन इन्होंने तो भर भर के ड्राई फ्रूट्स को पहले, अच्छा ये पहले ड्राई फ्रूट्स को ब्राउन करते हैं, ब्राउन क्यों? करते हैं ताकि मतलब वो क्रिस्पी से हो जाए ना, बिल्कुल नरम नरम से ना हो। हाँ वो अजीब पके, से ना और लगे। हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, तो कभी ट्राई करोगे तो मैं भी बनाऊंगी। कब बना रहे हो फिर आप? हम बनाएंगे कब? ड्राई फ्रूट 10,000 रुपये का चिलगोज़ा। अरे हमारे यहाँ 300 पाव मिल रही है ना मूंगफली, 300 और उसमें इंडिया में कमेंट आया कि 120 रुपये केजी मिल रही है। देखो कितना फ़र्क, यानी 900 रुपये केजी हमारे पास नहीं, 1200 रुपये केजी। हाँ 1200 रुपये केजी और और 120 रुपये केजी। कितना फ़र्क है करेंसी के रेट एक जीरो हटा दो। अगर करेंसी भी देखी जाए तो हमारे यहाँ जो 300 की चीज़ है वहाँ 100 रुपये की होनी चाहिए। 120 रुपये नहीं, हमारे यहाँ पे जो 1200 की चीज़ है वहाँ पे 300 की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ 120 रुपये केजी मिल रही है यार, क्या सस्ता है। बहुत फर्क है। सस्ता है जब भी इतने ड्राई फ्रूट डाले, ड्राई फ्रूट भी जाहिर सी बात है सस्ते ही होंगे, किशमिश, बीज और ये वगैरह सब कुछ। लेकिन मुझे इनकी एक आदत अच्छी लगती है कि ये बनाते हैं और कभी बच्चों को स्कूल हाँ। में है ना, और कभी ओल्ड एज होम जाते हैं और वहाँ जाके खिलाते हैं, क्योंकि वो लोग बच्चों को दूसरे खिलाते हैं। हाँ ये ये वाला जो ओल्ड, चैनल है, हाँ ये हाँ। ओल्ड एज होम जाते हैं, ये इनका एक ही लेकिन जगह है, आश्रम है जो बुजुर्गों के लिए, तो वहाँ पे जाते हैं, उनको खिलाते हैं और पूरे लवाजमात के साथ देते हैं, यानी कि प्रॉपर कटोरी के साथ। हाँ। यानी कि एक चीज़ अगर इतनी मेहनत से बनती भी है तो उसकी पूरी जो उसका प्रोटोकॉल है ना वो पूरा अदा करते हैं। ये है, मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि ये बनाते हैं और खुद नहीं, मतलब लोगों को खिलाते हैं। ये वाली आदत बहुत अच्छी लगती है। और बारिश में भी काम चल रहा है। बारिश में तो अलग ही मज़ा होता है ना यार, बारिश और मतलब कितनी ग्रीनरी और पंछियों की आवाज़ें, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है कसम से। तो- और कितने हरे हरे पत्ते होते हैं, मतलब यहाँ तो यहाँ पे बारिशें बहुत होती होंगी, बहुत बारिशें, जब भी तो ग्रीनरी है। बारिशें जहाँ होंगी वहाँ ग्रीनरी होगी, तो बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था। दोबारा किसी और साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।